Last time when we talked in the last lecture हमने बात की थी, तब हम टॉपिक हमारा था एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें मैंने आपसे बताया था कि आप खुद से भी कुछ ईआर डायग्राम्स बनाएं, जैसे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और होटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ गुड एग्जांपल आल्सो। सो आई होप कि जिनने नहीं किया है वो करेंगे। नाउ एक और मॉडल है या इसमें डेटाबेस मॉडलिंग में, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। अगर आपको याद है, हमने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जब हम डेटाबेस एनालिसिस करते हैं, वी स्टार्ट विद एन ईआर डायग्राम, वी स्टार्ट विद एन conceptual we start with an ER diagram, okay, a high level conceptual model. What is ER? Which is simply an entity relationship diagram where we represent our entities in the database through pictorially, through some notations. Okay. And also, not only we represent the entities, but also their associations or relationships. अब अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, आई गो ऑन दैट स्क्रीन, हाँ ये वाला, दिस वन, कैन यू हियर मी? ओके, हियर दिस वन आई वांट, यस, दिस कंपनी डेटाबेस। इसी कंपनी की डेटाबेस की फिर से बात चलेगी, लेकिन इस बार what we'll be doing, we will try to map this ER diagram to tables, to a relational model. Relational model is nothing but it is an organization of data in form of tables or relations, or mathematical relations or tables. Here we'll use the term tables, where a table is collection of rows and columns. Table is collection of rows and columns. Now, this was our problems description. This was our problem description when we started using ER modeling. The problem description is like this. We have a company database, and a company has employees, it has departments, and also projects. Then some information is given. The company is organized into departments. Each department has some attributes, name, code, etc. And each employee manages a single department. This is some information that we were given. A department controls number of projects. We store each employee's name. That means attributes of employees are given. And also we are given that each employee some dependents, and employees work on in departments and they work on projects. One employee works in a single number of employees work in a single department. Number of employees work in a department, and many employees can work on many projects, or in other words, a project can be assigned to more than one employee. So this description we read many times in past also. Now we started with drawing an ER diagram. ये हमारी ER diagram है। इसमें employee एक entity है, इसके अपने attributes दिए हैं, attributes दिए employee ID, name, etc. उसके बाद डिपार्टमेंट दूसरा एक एंटिटी है, प्रोजेक्ट एंटिटी है, डिपेंडेंट एंटिटी है। कुछ एंटिटीज इसमें स्ट्रॉन्ग है जैसे एम्प्लॉय, कुछ वीक है जैसे डिपेंडेंट। कुछ रिलेशनशिप्स है, लाइक वन रिलेशनशिप है एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क फॉर अ डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनैलिटी है n:1। रिलेशनशिप है मैनी टू वन। एक और रिलेशनशिप है 1:1, यानी वन एम्प्लॉय मैनेज वन डिपार्टमेंट, एंड वन मोर इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क ऑन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये लास्ट टाइम हमने अच्छे से डिस्कस किया था। एक और इसमें रिलेशनशिप है रेकरेंस रिलेशनशिप, यानी एम्प्लॉय वन सुपरवाइज नंबर ऑफ अदर एम्प्लॉयज, एंड वन मोर वन एम्प्लॉय हैज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। ये तो हमने किया था। अब हमारा टास्क है इस बार कि इस ER डायग्राम को कैसे हम मैप करें टू कॉरस्पॉन्डिंग टेबल्स, और इन अदर वर्ड्स हाउ टू डिराइव टेबल्स फ्रॉम दिस कॉरस्पॉन्डिंग ER diagram. We have to map, we have to do a mapping, we have to map this entity relationship diagram to a relational model.
Can you hear me? Hello? Okay. Now let us see this screen. ये relational model like this. यानी हमारा डेटा कुछ ऐसा होना चाहिए. अभी तो ये एम्प्लॉय डेटा नहीं है, स्टूडेंट का डेटा है, लेकिन एम्प्लॉय का डेटा भी होता तो ऐसा कुछ होता है. एम्प्लॉय नेम होता है, एम्प्लॉय कोड होता है, फोन नंबर, एड्रेस एंड एक्स्ट्रा. तो जितनी भी आपकी एज ए जनरल रूल जितनी भी आपकी एंटिटीज होंगी, जितनी भी आपकी एंटिटीज होंगी, जैसे एक एंटिटी है एम्प्लॉय, इट विल बी मैप टू अ टेबल. एक टेबल बनेगा उसका, रोज एंड कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स आपके कॉलम्स और डेटा जो भी होगा, एंटिटी सेट वन, एंटिटी टू, एंटिटी थ्री. दिस ऑब्जेक्ट वन फर्स्ट रो is object 1 data, object 2 data, object 3 data, yeah, entity 4 data, entity 5 data. So entity sets, tuples or rows. One row is a record of one student, another row is a record of another student, and so on. Simple. Okay, we call it relation or we call it table. Now see here, employee. Another table will be department. As a general rule, जितने भी आपके entities होंगे वो मैप, वो कॉरेस्पॉन्डिंग, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल्स बनेंगी. यानी अभी इसमें कौन कौन सा टेबल बनेगा, जब कोई मुझे बता सकता है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? हेलो, हाँ जी, बताइए. एक टेबल एम्प्लॉय बना, दूसरा टेबल कौन सा बनेगा? और प्रोजेक्ट, वो भी एक एंटिटी है, डिपेंडेंट भी एक एंटिटी है. यानी ये सब टेबल्स बनेंगे. ये सब टेबल्स, जितने भी इन टेबल्स के अपने अपने एट्रीब्यूट्स है, वो उनके कॉलम्स बनेंगे. सबसे पहले यही काम करना है. उसके बाद वंस वी आर डन विद दिस, जैसे हमने एक टेबल बनाया एम्प्लॉय का, दूसरा बनाया किसका, डिपार्टमेंट का, प्रोजेक्ट का, उनके एट्रीब्यूट्स लिखे. तो उसके बाद हमें ध्यान देना होता है, वो हैव टू चेक, ऑब्जर्व कि जो ये एसोसिएशंस है ये कैसे इंप्लीमेंट करें. जैसे अगर मैं कल को इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता हूँ किसी एम्प्लॉय की, या मुझे इंफॉर्मेशन, एक रिपोर्ट चाहिए कि मुझे देखना है कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उस रिपोर्ट को जनरेट करने में, यानी जो एसोसिएशन है, जो रिलेशनशिप है, उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करूं, उसको कैसे मैप करूं. टेबल्स तो हमने, एंटिटीज तो हमने मैप की टू कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल्स. अब रिलेशनशिप्स को कैसे मैप करें, रिलेशनशिप्स को कैसे मैप करें, क्वेश्चन ये आता है. ये टर्म्स आप थोड़ा सा देखेंगे, ट्यूपल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, या कॉलम क्या होता है, रो किसको कहते हैं, रिलेशन हो क्या है, टेबल. जैसे आप यहाँ पर देखिए, अभी तो एम्प्लॉय का टेबल नहीं है, स्टूडेंट का है. देखिए इसमें एक टेबल है स्टूडेंट्स, दूसरा है एग्जाम्स, तीसरा है कोर्सेस. नाउ चेक, पहला कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड बर्थ डेट. दूसरा टेबल एग्जाम्स है, एग्जाम्स में एट्रीब्यूट है ग्रेड और स्टूडेंट रोल नंबर. ओके, उसके बाद कोर्स, इस स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है. उसके बाद एक और टेबल है कोर्सेस, ये वाला, कोड, टाइटल और ट्यूटर. अभी आप मुझे बता सकते हो, जो ये एग्जाम्स टेबल है, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, एग्जाम्स वाला टेबल बताए. मेरी बैटरी लो हो रही है लैपटॉप की. जो एग्जाम्स वाला टेबल है उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें एक कॉलम है ना स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी स्टूडेंट का कॉलम है. ये कॉलम इन दो को लिंक करता है आपस में, ये इनकी रिलेशनशिप है, ये इनकी एसोसिएशन है. अगर मैं ये कॉलम यहां से हटाऊं, ये स्टूडेंट वाला, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किस स्टूडेंट का कौन सा ग्रेड है, पता चलेगा मुझे.
इसी से पता चलता है, जबकि स्टूडेंट एनरोलमेंट जो रोल नंबर है, लिंक है बिटवीन दी, दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट टेबल एंड एग्जाम टेबल। ऐसे ही यहाँ पर कोर्सेज का भी अलग से, क्यों कोर्सेज में हमें है कौन सा कोर्स है, कौन सा सब्जेक्ट क्या क्या है, ट्यूटर कौन सा है, यहाँ पर तो हाँ हाँ, क्योंकि एग्जाम अगर ग्रेड है तो मतलब किस कोर्स का ग्रेड है, ठीक है। हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने मतलब हिसाब से करेंगे, डिपेंड्स, या डायग्राम कैसे है वैसे ही टेबल्स भी होंगे, ठीक है। अभी मैंने जनरली एग्जांपल लिख दी, देखिए जो कोर्स है यहाँ पर, अब कोर्सेज यहाँ से, कोर्स की फिर डिटेल्स है कोर्सेज वाले टेबल में, लेकिन लिंक है बिटवीन कोर्सेज एंड एग्जाम्स, द लिंक इज कोर्स कोड, द लिंक इज व्हाट, कोर्स कोड। इसके थ्रू आपको पता चलेगा ये किस कोर्स की बात कर रही चल रही है। एक छोटा सा एग्जांपल, ये तो हमें करना ही है, रिलेशनल डेटाबेस चॉइस असल क्वेट फॉर्म। आई एम रनिंग आउट ऑफ माय बैटरी, आई नीड टू चेंज गो समवेयर, वेट करो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यू बी देयर। एक मिनट, हाँ मुनियस, यानी अभी हमने कहा कि जो हमारी ईआर डायग्राम है, फाइनली ईआर डायग्राम को मैप करना होता है किसमें, रिलेशनल टेबल में, टेबल्स में। और ये भी याद रखना होता है कि जो हमारी एसोसिएशंस है उनको भी मैप करना होता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप्स आल्सो, रिलेशनशिप्स को भी मैप करना होता है, और जो मैंने कहा कि टेबल्स को भी, यानी एंटिटीज को भी, दोनों चीजों को मैप करना होता है। वो कैसे होता है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कुछ, अ, ये वाला आप पढ़ेंगे, ये वाला लेक्चर बहुत पहले मैंने दिया था, थोड़ा आप पढ़ेंगे आज, कल हम ये डिस्कस करेंगे, ये वाला जो इसके बाद है हियर व्हाट्सएप ग्रुप में, दिस वन, हाँ, कीज। बिफोर वी गो इन डिटेल्स ऑफ रिलेशनल मॉडल, थोड़ा सा इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशनल मॉडल कुछ भी नहीं है, रिलेशनल मॉडल है जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं किसमें, टेबल्स, और टेबल्स में, वेयर एज ए टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब जैसे अब ईआर डायग्राम में आपको याद है, ईआर डायग्राम में हमने एक बात की थी, हमने कहा था एम्प्लॉय का जो ये एट्रीब्यूट है ना, एम्प्लॉय आईडी, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, जरा मुझे कोई बताए जल्दी से। यस, यूनिक की एट्रीब्यूट, वी कॉल इट की एट्रीब्यूट, कौन सा, की एट्रीब्यूट, हाँ, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का यूनिक अपना अपना एनडी होगा, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना रोल नंबर होगा। ये यानी यहां से हमें एक टॉपिक अब आएगा जिसे हम कहेंगे रिलेशनल कीज, कीज कौन कौन सी होती है, यानी अब ये की एट्रीब्यूट, जब मैंने बात की एट्रीब्यूट, लेकिन इस की एट्रीब्यूट के अब टाइप्स होते हैं, जैसे एक की एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं सुपर की, क्या कहते हैं उसको, सुपर की। दूसरा होता है कैंडिडेट की, तीसरा प्राइमरी की। जब हम टेबल्स इंप्लीमेंट करेंगे एक्चुअली डेटाबेस में, एसक्यूएल में, तब हम ये कॉन्सेप्ट्स वहां पर काम आएंगे। फॉरेन की एक और होता है, कंपोजिट की होता है, ऑल्टरनेट की होता है, ये होता है सेकेंडरी की। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, कल हम ये डिस्कस करेंगे। यानी हमने कहा जब हमारी ईआर डायग्राम है, जैसे यहाँ पर ईआर डायग्राम है, दिस इज अवर ईआर डायग्राम, इसमें हर एक एंटिटी जो है कोई ना कोई किसी का की एट्रीब्यूट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, जैसे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट कोड है, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट कोड या प्रोजेक्ट नेम है, एक्स्ट्रा स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो अब जो ये की एट्रीब्यूट होता है इसके अपने टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, जैसे रिलेशनल मॉडल में हम कीज, there are various types of keys in relational model, and these types of keys are super key, candidate key, primary key, very important, and what, foreign key, composite key, secondary key, and so on. ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अब अगर पॉसिबल हुआ नेट ब्राउज करना, और ये वीडियो, अगर कोई वीडियो होगी वो मिलेगी वो भी देखना, प्लस ये स्टडी मटेरियल भी थोड़ा सा देखना,
और भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आज शाम को डाल रहा हूँ कुछ मटेरियल रिगार्डिंग दीज कीज एंड रिलेशनल मॉडल्स। हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक ठीक, हाँ आप ये थोड़ा सा पढ़िएगा, कीज वगैरह क्या होता है, ठीक है? कल हम ये डिस्कस करेंगे आराम से, पूरा का पूरा, हाँ। चलिए ठीक है, हु वाज देयर इन द क्लास? अभी है, ओके। हु एल्स इज देयर? हु जॉइन लेट? जरा कौन है? सज्जाद, ओके। ठीक है, आप लोगों ने सुना? हेलो सज्जाद, अनम्यूट योरसेल्फ। सईद एजाज, आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आपने सुना मैंने क्या कहा अभी? हाँ, ये अब देखेंगे कीज क्या होता है, ये कीज थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेशनल मॉडल सिंपली क्या है कि टेबल्स जो आपकी एंटिटी डायग्राम है, इसको आप रिलेशंस या टेबल्स में ऑर्गेनाइज करना है या मैप करना है। हर एक एंटिटी का अपना अपना टेबल बनेगा एज ए जनरल रूल। फिर रिलेशनशिप्स का क्या होगा, उनको कैसे मैप करेंगे, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे कल। उससे पहले एक और टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कीज, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ। और पॉसिबल हुआ तो जो मैंने ईआर डायग्राम का असाइनमेंट दिया था वो देखना कि कैसे एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का ईआर डायग्राम बनाया जाएगा। सजाद, यस, चलिए ठीक है, हाँ, विल मीट टुमारो इंशाल्लाह।